اس مقام پر پہنچتا ہے، اس پر فائد ہوتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کا دوست اور ولی ہونے کا شرف ملتا ہے۔ مجھے بولے نا سبحان اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مقام کب ملتا ہے؟ جب بندہ اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ بیوی بچے جائیداد اس کو پراپرٹی کاروبار کوئی چیز بھی اللہ کی یاد سے نہیں روک سکتی، تو پھر رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، یہ وہ ہے جو رب کا دوست بن چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا الہی، آستانہ لیا کوٹلی میانی شریف، زندہ باد فیض قندہاری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ مقام ہے رب کے دوست اور ولی کا۔ اور اب آپ سمجھ گئے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ عوام والا تقویٰ بھی پیچھے، خاص کا تقویٰ بھی پیچھے، اور خاص الخاص کا جو تقویٰ ہے نا، رب نے اس سے صحابہ کو نوازا تھا۔ اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے پرہیزگار، اگر باغ کا تصور رب سے غافل کرے تو سارے کا سارا باغ، سارے کا سارا باغ۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، بعض کا بادشاہ اپنے بستر پہ سوئے ہوتے ہیں تو دل روشن ہو جاتا ہے، ساری بادشاہ چھوڑ کے رب کی یاد میں نکل جاتے ہیں، رب کی یاد میں۔ اب ہمارا جو یہ نظام ہے، اب اس کو کون سا تقویٰ کہیں گے؟ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جی بڑا درویش ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ ہے، یہ فلاں بڑا درویش ہے۔ اتنا درویش ہے، اتنا درویش ہے، پیسوں کا بڑا پتہ ہے، اتنا درویش ہے کہ پیسے کا پتہ ہے۔ اور ہمارے ملک میں جو پاگل پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو جن کو پاگل کہتے ہیں، ان کو بھی پیسوں کا پتہ ہوتا ہے، ان کو بھی پیسے دو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے ہیں، لیکن یہ ہماری باتیں نہیں ہو رہی۔ اور یہ کوئی سمجھ نہ لے کہ فلاں کی بات ہو رہی ہے، یہ خاص الخاص جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم تو عام کلمے والے مسلمان، اور خاص کہ ہر اس چیز سے بچنا کہ جو نفس کو موٹا کرے، نفس کو پالے، نفس کو تکبر پیدا کرے۔ اور آج اگر کوئی اپنے آپ کو صوفی کہے اور پیسے سے اس کا نفس موٹا ہو، پیسے کمانے کی طرف اس کی توجہ ہو، پراپرٹی بنانے کی طرف اس کی توجہ ہو، میں اس کو صوفی نہیں کہوں گا۔ قرآن میں صوفی اس کو کہا ہے جو اللہ سے اس معنی میں ڈرتا ہے کہ ہر اس چیز، بلکہ صوفی کا تقویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بلڈریں بھی اس لیے نہیں بناتا کہ اللہ کی مخلوق مزدوری کرے گی، وہ مصیبت میں پڑیں گے۔ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے ہر اس عمل سے بچتا ہے جس سے قوم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ درجے بہت بڑے ہیں، یہ بیان ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی کہے نا میں اس پہ پورا ہوں، وہ نہیں، بڑا مشکل ہے۔ تو یہ جو متقی ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے متعلق علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ تمام تفاسیر جو ہیں ان میں دوست اور ولی کے معنی پڑے گئے، لیکن مولانا ثناء اللہ پانی پتی کے بیان میں جتنی کشش ہے، جتنی چاشنی ہے، جتنا ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں الولی القرب
वद्दनू, यानी वली का माना है कुर्ब और नजदीकी। वली का माना है कुर्ब और नजदीकी। इसका माना है करीब, मुहिब, सिद्दीक और मददगार। फिर फरमाते हैं कुर्ब की 2 किस्में। कितनी किस्में हैं? 2। ये जो वली का माना है ना कुर्ब, अल्लाह का करीबी होना, दोस्त होना, इसकी 2 किस्में हैं। एक वो कुर्ब जो इंसान बल्कि कायनात के जर्रा जर्रा को अपने खालिक से है। वो क्या है? नहुम अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला हर एक की शारिक से भी क्या है? शारिक से भी ज्यादा करीब है। ये कुर्ब जो है ना, ये मुतलक है पूरी मखलूक का। उसमें जर्रा भी है, चरिंद परिंद चूंटियां, हर चीज है। एक ये कुर्ब है, और जो हर एक को है, हर कलमा को भी है, हर अल्लाह की मखलूक को भी है। और दूसरा वो क्या है? वो दूसरा ये है कि अल्लाह ताला के कुर्ब के अलावा वो हर कुर्ब को शिर्क समझे। कुर्ब के अलावा और कोई भी उसके नजदीक चीज हैसियत ना रखती हो, तो मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने इस कुर्ब को हदीस कुदसी में यूं बयान किया, ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही। मेरे करीम अलैहिस्सलाम दूसरा जो कुर्ब है उसको यूं बयान फरमाते हैं कि रब का फरमान है। सुभान अल्लाह। किसका फरमान है? रब का फरमान है अपने हबीब को। हबीब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बंदा नफली इबादत के जरिए मेरे करीब होता रहता है। मुझे बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे करीब होता रहता है, मेरे करीब होता रहता है, यहां तक कि उससे मोहब्बत करने लगता हूं। कौन? अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरे करीब होता रहता है, होता रहता है। किसके जरिए? नवाफल के जरिए। किसके जरिए? नवाफल के जरिए करीब होता रहता है। रब फरमाता है मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, यहां तक कि मैं ही उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं ही उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। फरमाया ये पूरा बढ़ता रहता है, जैसे जैसे वो नफल पढ़ता रहता है वो रब का कुर्ब पाता रहता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, फैज़े कंधारी जारी रहे, फैज़े कंधारी जारी रहे, आस्ताना लिया कोटली में आनी शरीफ जिंदाबाद। ग्रामी कदर हज़रात, अल्लाह का कुर्ब मिलता है बंदे को। और यहां अगर कुर्ब मुस्तफ़ा की बात करें, कुर्ब मुस्तफ़ा की बात करें तो वो तो मुकाम भी अलग है। ये तो मुत्तकीन का मुकाम बयान हो रहा है। ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया, ये तो अल्लाह का बंदा आम है जो नफल पढ़ता पढ़ता रब का करीबी हो जाता है। इतना करीबी हो जाता है, इतना करीबी हो जाता है। रब्बे ज़ुल जलाल
अपने प्यारे हबीब को जो इनामात अता फरमाता है, उसमें मेरे करीम आका फरमाते हैं, जिसको हजरत मालिक अहमद तिबरानी वगैरह ने हजरत माज बिन जबल से रवायत की है। मेरे करीम आका फरमाते हैं, क़ाल समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु क़ाल अल्लाहु तआला वजबत मुहब्बती लिलमुतहाब्बीना फी व फिल मुतजालिसीना फिया वल मुतज़ारिवीना फिया वल मुतबादिलीना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यानी हजूर ने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों में से जरूर मोहब्बत करता हूं जो आपस में मेरी वजह से प्यार करते हैं। और फरमाते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं जो आपस में मेरी वजह से प्यार करते हैं। और फरमाया, मैं उनसे भी प्यार करता हूं जो मेरी खातिर एक दूसरे के पास बैठते हैं। और फरमाया, मेरी रजा जोई के लिए एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं और मेरी खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं। फरमाया, उनसे भी प्यार करता हूं जो एक दूसरे से मेरी वजह से प्यार करते हैं और मेरी खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं। कमी कदर हज़रात, चूंकि टाइम कम है और कम टाइम में बात जो है उसको समझना मुश्किल होता है, तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, उसके नफल पढ़ने वाले, उसके करीबी जो बंदे हैं, जब रब उनको मुकाम अता फरमाता है, जब उनका कुर्ब मिल जाता है, तो फिर क्या होता है। मौलाना काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती तफसीर मज़हरी में लिखते हैं कि हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख सरहंदी आप फरमाते हैं, मैंने निगाहे कश्फ से अपने दोनों साहबजादों मोहम्मद सईद, हजरत मोहम्मद सईद और हजरत मोहम्मद मासूम के उस्ताद मुल्ला ताहर लाहौरी की पेशानी पर देखा। मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हैं, शेख सरहंदी, कि मैं अपने कश्फ से जो रब की दी हुई ताकत है कुर्ब की, मैंने अपने बच्चे के उस्तादों के माथे पर देखा। जब माथे पर देखा तो लिखा हुआ था बदबख्त। अल्लाहु अकबर। क्या लिखा हुआ था? आप फरमाते हैं, मैंने इसका तज़किरा दोनों बेटों से किया। बेटा, तुम्हारे उस्ताद के माथे पर बदबख्त लिखा है, तुम्हारा उस्ताद शक्की है। आप फरमाते हैं, बेटों ने मेरे उन्हें कहा, अब्बा जी दुआ करें। अब्बा जी हमारा उस्ताद है, दुआ फरमाए कि रब्बे ज़ुल जलाल उसको खुशबख्त कर दे, नेक बख्त कर दे। आप फरमाते हैं, मैंने लोहे महफूज पर देखा, या तक़र्रबु इलैया, नफल पढ़ पढ़ के बंदा इतना रब के करीब हो जाता है, फिर वो बंदा फर्श पर बैठकर अर्श की लिखाई को देखता है। लोहे महफूज पर देखा। ये क़ज़ाए मुबरम है। क़ज़ाए मुबरम का माना है बदलती नहीं, बदलती नहीं, इसको बदला नहीं जा सकता। बच्चों ने फिर भी दुआ के लिए इसरार किया, आपको याद आया। मुजद्दिद पाक कहते हैं, मुझे याद आया। क्या आया? याद आया। जब बच्चों ने इसरार किया ना, मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी आप फरमाते हैं, हजरत गौसे सकलैन मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
इन्नक लाल मुबरमा ऐदु युरद्दु बिदावती। आपका उनको कौल याद आ गया, उनको फरमान याद आ गया, किनका? जिनकी यारवीं है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हसनी हुसैनी का कौल याद आ गया कि कज़ाए मुबरम भी मेरी दुआ से बदल जाती है। हाय हाय हाय, सरकार गौसे पाक का कौल याद आ गया कि मैं वो गौस हूं कि जिसकी दुआ से दुआए मुबरम, कज़ाए मुबरम भी बदल जाती है। तो दुआ की, अल्लाह तेरी रहमत बड़ी वसी है, तेरा फजल किसी एक पर बंद नहीं, मैं उम्मीदवार हूं और सवाल करता हूं कि अपने फजले अमीम से मेरी इल्तिजा को कबूल फरमा।